Good morning everyone. So today we are going to discuss about relative velocity in two dimensions. So in previous chapter we have already studied about relative velocity in one dimension when two vectors are along the same direction, then the velocity of one with respect to second or the velocity of second with respect to one is called relative velocity in one dimension. Now we are going to study about relative velocity in two dimension. Whenever the body is moving in a plane, x coordinate भी change हो रहा है, y coordinate भी change हो रहा है, then we say that the body is having some velocity with respect to other, then this is how we find the relative velocity of one body with respect to other when both the coordinates x and y are changing. For example, we take the case of a person when say a person is cycling in rain also is coming, raindrops are also coming with some velocity and the person is also moving, right? Relative velocity in two dimension. So we take the case of umbrella and man. I'll change the marker. We take the case of umbrella and man, right? So suppose a person is moving from, say a person is moving from east to west. This is east, this is west, standard direction values and vectors north and south. Now raindrops are falling vertically downward. Suppose the rain is falling vertically downward, and it is not always true that rain is falling vertically downward. It may fall at an inclination also. Say suppose in this case we have taken that the raindrops are vertically falling downward. So let us say this is the direction of, this is how the velocity of raindrops VR, right? A person is moving from east, sorry we have taken a different case, yeah, okay, the person is moving, I'll write down to avoid confusion, person is moving from west to east. person कहाँ जा रहा है? west से east की तरफ जा रहा है and raindrops are falling vertically downward. Raindrops vertically downward, person velocity of man is from east to west. तो ये जो है ये है man की velocity, velocity of man. This is velocity of rain, right? Now we have to find the relative velocity of man with respect to rain. We have to find the relative velocity of rain with respect to man or man with respect to rain, anything could be found. So suppose हम क्या find करें? Relative velocity of rain with respect to man. So what is moving? Rain. That is how we read VAB. A in motion, B is the observer. Who is observing? Man. Whom he is observing? Raindrops, right? So this will be as per the rule, velocity of rain minus velocity of man. This is how we write the vector form. दो वेक्टर्स को माइनस करने का मतलब क्या होता है? दो वेक्टर्स को माइनस करने का मतलब होता है VR plus negative of VM, because we do have rules of vector addition. हमने क्या पढ़ा है? वेक्टर एडिशन के रूल्स पढ़े हैं. वेक्टर एडिशन मीन्स एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर कैसे ऐड करना है ये पढ़ा है, राइट? सो VR में VM कैसे ऐड करना है? VR प्लस नेगेटिव ऑफ VM. सॉरी, सो इफ दिस इज VM, इसका नेगेटिव वेक्टर हमें कहां लेना होगा? ये डायरेक्शन में. सो दिस इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ VM. क्यों? क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? VRM, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट से हमें पता चलेगा, राइट? सो दिस इज VM, दिस इज VR. दोनों वेक्टर्स का कोइनिशियल पॉइंट सेम, दे आर कोइनिशियल वेक्टर. कैसे रिजल्टेंट फाइंड करेंगे? इन ऑर्डर टू फाइंड द रिजल्टेंट व्हाट वी हैव टू अप्लाई? वी हैव टू अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. VM का पैरेलल वेक्टर ये ड्रॉ कर लिया हमने, VR का पैरेलल वेक्टर हमने ये ड्रॉ कर लिया और दोनों का रिजल्टेंट होगा ये. दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, राइट? सो दिस इज VRM, दिस इज नेगेटिव ऑफ VM, दिस इज VR. मतलब
अगर पर्सन ऐसे जा रहा है तो उसको रेन कैसे आती हुई दिखाई देगी, ऐसे आती हुई दिखाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब जब रेन उसे ऐसे आती हुई दिखाई देगी तो वेयर ही हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला, हाउ ही हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, हाउ ही हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला. So the umbrella should be held in such a way that he should be able to avoid the raindrops falling on his body. So how to do that? When he is holding the umbrella opposite to the relative velocity of rain with respect to man. अभी relative velocity of rain with respect to man तो ये है, इसके opposite direction में ऐसे उसको umbrella hold करना पड़ेगा. I'll draw umbrella here. Can't draw better than this. तो ऐसे उसको umbrella, he has to hold his umbrella in this direction. इस relative velocity of rain with respect to just opposite direction में he has to hold his umbrella. Suppose this angle is theta, right? So this angle would also be vertically opposite angle will also be theta. अभी जब हम लिखेंगे इसमें डायरेक्शन, VRM का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर एट राइट एंगल्स, तो मैग्नीट्यूड जब हम फाइंड करेंगे तो सिंपली VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर हो जाएगा. डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा से हमें डायरेक्शन पता चलेगा. व्हाट विल बी tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज VM अपॉन बेस इज VR. दिस इज हाउ ही हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला. ये थीटा आ गया तो ये भी थीटा आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, थीटा कितना है, थीटा है tan इनवर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन फ्रॉम वर्टिकल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी वो ऐसे अम्ब्रेला लेके जा रहा है, सपोज ही इज होल्डिंग द अम्ब्रेला लाइक दिस. व्हेन ही इज होल्डिंग हिज अम्ब्रेला लाइक दिस, से ये वर्टिकल डायरेक्शन है और उसको अपना अम्ब्रेला ऐसे एडजस्ट करना पड़ा, तो वर्टिकल से उसे थीटा एंगल मूव करना पड़ा, राइट. सो वर्टिकल से ये एंगल माना जाएगा. दिस कुड बी दिस एंगल ऑल्सो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा ये एंगल कौन सा होगा, थीटा. अगर ये एंगल होगा, अगर तुम्हें हॉरिजॉन्टल से लिखना है, इट विल बी 90 माइनस थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, एज वी टेक नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट एट 90 डिग्री. तो ये वाला जो एंगल है, वी हैव टू मेंशन इट इन द एंड, that the angle is tan inverse of VM by VR from vertical. This word is very very important here. From vertical. Vertical से he has to move his umbrella, जो कि किसके opposite है, relative velocity of rain with respect to man के opposite है, और that is how he will be saved from the rain. Because उसको rain क्या observe होगी, क्या VR से observe होगी, no. VM से ऑब्जर्व होगी, नो. ही विल ऑब्जर्व, उसको क्या फील होगा, उसको एपरेंट रेन का डायरेक्शन क्या फील होगा, रेन का वेलोसिटी VRM फील होगा, राइट, नॉट VR. और VRM कुड बी डिफरेंट फ्रॉम VR. जिस वेलोसिटी से रेन ड्रॉप मूव कर रही है, जरूरी नहीं है उस वेलोसिटी से पर्सन को भी फील हो, ही विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू. और अगर तुम मैग्नीट्यूड को देखोगे तो मैग्नीट्यूड में तो ये पॉजिटिव, इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा. तो अगर समझो रेन ड्रॉप्स कौन सी वेलोसिटी से गिर रही है, 5 किलोमीटर पर आवर, बट जब पर्सन मूव करेगा तो हो सकता है उसको 6 फील हो, 7 फील हो, 8 फील हो. नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप से ज्यादा ही उसको फील होगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बड़ा ही आने वाला है, राइट. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, जब आप खड़े होते हो रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग, तो तुम्हें लगेगा रेन मतलब बारिश कम हो गई. बट वेन यू आर इन मोशन, यू आर ऑन साइकिल, यू विल फील कि बहुत तेज बारिश पड़ रही है. यू आर ऑन बाइक, यू विल इवन फील हायर वैल्यू. यू आर इन अ ओपन कार्स और जीप, तो तुम्हें लगेगा बहुत तेज बारिश हो, लेकिन वहीं पे तुम रुक के देखो तो तुम्हें क्या ऑब्जर्व होगा, VR. लेकिन जब तुम चल रहे होते हो तो तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, VR नहीं ऑब्जर्व करते, तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू यू. जितना तुम्हारा स्पीड ज्यादा होगा, साइकिल पे ये कम होगा तो ये भी कम आएगा, बाइक पे ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा आएगा, कार में, ओपन कार में ये और भी ज्यादा होगा तो ये तुम्हें और भी ज्यादा फील होगा. तो तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, तुम ऑब्जर्व करते हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू यू एंड नॉट द वेलोसिटी ऑफ रेन विद विच द रेन ड्रॉप्स आर falling. So that is how the magic of physics works here. So relative velocity in 2 dimension, that is how we find the velocity from the vertical, and that is how we find the direction, magnitude of the value of relative velocity, right.
and this angle theta, you have to remember, it is from vertical. Theta is the angle from the vertical.